हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर आया है। कक्षा 8वीं विज्ञान के अंतर्गत बल और दबाव। बल और दबाव चैप्टर जो है काफ़ी मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें हम जो है विस्तार पूर्वक MCQ के अंतर्गत क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि ये आपके समक्ष हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पर हम हर एक MCQ को एनालाइज करेंगे, समझेंगे और आपको आंसर देना पड़ेगा। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा MCQ क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर, फोर्स एंड प्रेशर, क्लास 8 CBSE NCERT science here. You know that this is the most important chapter, force and pressure, MCQ. This is MCQ is the most important. The first question arrive here. Two objects repel to each other. Two objects repel to each other. This repulsion could be a due to. This repulsion due to first frictionally force only, B electrostatic force only, C magnetic force only, D either a magnetic or on electrostatic force. You know that is the most important question. But first of all, you choose the right answer for the 4 options here. You know that you choose the answer. I write your notebook. Let's see what is the answer for this question. Question is clear here. Two objects repel to each other. Two objects repel to each other. This repulsion could be a due to. There is a friction force only. There is a nothing is a frictional force only. Friction is the most important, but the nothing is a repel to each other. Electrostatic force. There is a electrostatic force. This right, but magnetic force only. There's also is important. You know that electrostatic force is applied here and magnetic force apply here. It means the D option is correct here. D option is correct. D is the either are magnetic or on electrostatic force. It means to D option for this question answer is correct here. Option D is correct here. Let's see next question. The next question on your screen. The question here, a push or pull on object is called. A push or pull on object is called A pressure, B push pull, C force, D all of above. That's important here. You know that first of all you give an answer for this question. 4 options is the most important and write the correct answer of your notebook. Okay? And let's see what is the answer for this question. You know that a question is a push or pull on object is called pressure. There is nothing is a pressure here. Push pull, that is nothing is a push pull. There is only here apply a force. It means to the C option is correct here. A push or pull on the object is called force. It's called force. C option is correct for this question here. Let's see next question. Next question on your screen. Question here, if two forces act in the opposite direction on and the object the net force acting on it is the. You know that the question is clear. If the two forces act in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the A sum of the two force, B difference between the two force, C multiplication of the two force, D division of the two force. Question is very interesting, but you choose the answer for the correct for the 4 options and write your notebook firstly. You know that you write down your answer for your notebook. Let's see what is the answer for this question here. Question, understand? Question is clear. If the two forces act in the opposite direction
on an object there are net force acting on it is the answer is clear. Answer is clear. The difference between the two force. Difference between the two force. Option B is correct here. Option B is correct. Difference between the two force. That is a right answer here. Let's see next question here. Next questions on your screen. Question is here. A leaves fall down on the ground due to. A leaves fall down on the ground due to A. Electrostatic force, B. Magnetic force, C. Gravitational force, D. Muscular force. You know that. First of all, choose your answer for the four options and write out in your notebook. You have a note the correct answer notebook. Let's see what is the answer for this question here. Questions is clear. Leaves fall down on the ground due to. There is a due to. You know that electrostatic force, there is nothing apply here. It is not a leaf fall, the electrostatic force. It means to A option is wrong. B has the magnetic force. Magnetic force, there is nothing here. It means to B options also is here wrong. C, gravitational force. That's right, gravitational force. Gravitational force is the most important here. A leaves fall down on the ground due to the gravitational force. It means to the option C is correct here. Option C, gravitational force. That's the correct answer of gravitational force here. Let's see next question here. The next question on your screen. Question here. A state of motion is described by. A state of motion is described by A. Position of rest, B. Position of motion, C. Both by the state of the rest or motion, D. None of these. That's an important question here. But first of all, you give the answer for this question here. That's important. And write your notebook also. You have a write the notebooks. Okay. Let's see what is the answer for this question. Question is clear here. A state of motion is described by the position of rest. That's right. Position of the rest is correct. Position of the motion is also correct. It means two option is correct here. But you now have to tick the both option. It means to the option C. Option C is correct. Both by the state of rest or motion. There is option C is correct here. Both by the state of rest or motion. There is a C option is correct here. Next question on your screen. Question here, when the hammer strike there is a going of an electrical bell. Which of the following force is responsible for the movement of hammer? You know that you see the electrical bell. The question is relative there. When the hammer strikes the gong on the electrical bell, which of the following force is responsible for the movement of hammer? Responsible, the force, the moment of hammer. Hammers mean the ringing here. A. Gravitational force alone. B. Magnetic force alone. C. Electrostatic force alone. D. Frictional force alone. That's an important question here. But first of all, you give the answer for this question. That's important. You know that you write down your notebook your right answer. Let's see what is the answer for this question. Question is clear here. When the hammer strikes, there is a gong of the electrical bell. Which of the following force is responsible for the movement of hammer? There is a force responsible for the movement of hammer. A. Gravitational force alone. A. Gravitational force alone. There's nothing here. Magnetic force alone. No. There is a wrong options. Is the magnetic force alone. There's nothing is right. C. Electrostatic force alone. That's right here. Because the electrostatic force here apply for the ring of the electrical bell. And the force responsible for the hammer or moment of hammer. The electrostatic force. There is the right answer. Option C is correct here. Let's see other question here.
Next question on your screen. The question here, two boys A and B are applying the force on a block. Two boys A and B are applying for the force on the block. If the block move toward the boy, if the block moved toward the boy A, which one of the following statement is correct here? Which is one of the following statement is correct? A. Magnitude of force applied by B is greater than that of the B. B. Magnitudes of force applied by the A is smaller than to the B. And C here, net force on the block is toward to B. And D. Magnitude of force applied by A is equal to that of B. That's an important option. But first of all, you choose the answer for the four option, okay? And write your notebook firstly. You know that you have to write the answer for this question. Let's see what is the answer for this question here. Question is clear here. Two boy A and B are applying the force on the block. Two boy. If the block move to what to the boy A, which one of the following statement is correct? Here, magnitude force applied by A is greater than to the B. A is greater than B. The boy is a block or move to the toward the boy. That's the option is wrong. That option is wrong totally. B. Magnitude of force applied by the B. Magnitude force applied by A is smaller than to the B. You know that the B option is correct here. B option is correct. Magnitude of force applied by A is smaller than that of B. It means the B options were correct for this question. Let's see next question here. You know that next questions on your screen. Question here. When the two forces act in opposite direction, their net force acting in there. A. Sum of the two force. B. Difference between the two force. C. Both of these. And D. None of these. Question is clear. When the two force act in a opposite direction, their net force action is there. You know that you write the correct answer of your notebook. That's important. You have write the notebook or right answer. Let's see what is the answer for this question. Question is clear here. When the two forces act in the opposite direction, then net force acting in there. A. Sum of the two force. Sum of the two force is not a correct answer here. B. Difference between the two force. You know that difference between two force. That's the correct answer here. Because the two force act in opposite direction, there mean difference between the two force. Difference between two force. Option is B is correct. Option B is correct. Difference between two force. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. The strength of force is expressed by 8. The strength of force is expressed by 8. A. Weight. B. Mass. C. Magnitude. D. Longitudinal force. That's an important question here. But first of all, you give the answer for questions, okay? And write the correct answer for your notebook. You have a write down to notebook the correct answer. Let's see what is the answer for this question here. Question is clear. The strength of force is expressed by 8. That is the correct here. But option here, weight. Weight is nothing strength of force expressed by 8. See, there's a weight is a wrong here. Weight is wrong. B mass. B mass. There is a strength of force expressed. Nothing here. The mass is also is a wrong option. C magnitude. You know that strength of force expressed by the magnitude. That's the right answer. It means to the option C is correct. Option C is correct. Magnitude.
The magnitude is a correct answer for this question. Let's see next question here. Next question on your screen, and question here, on example of a non-contact force is. The example of non-contact force is A. Force extended by us to be left a blockade. B. Push a stationary car. C. Force extended by magnet. D. Hit a cricket ball for a 6 run. You know that is the question is most important. Non-contact force. The example of non-contact force. First of all, you choose the answer for the correct here and write your notebook firstly. You know that you have a write down to the right answer for the notebook. Let's see what is the answer for this question. Question is clear here. On example of non-contact force, it means to the without contact force. Without contact force. Force extended by to be fit the blockade. It means to the is a contact force here. It is a contact force. A is contact force. It's a not contact force, nothing here. It means to the A option is wrong. B. Push a stationary car. Stationary car push. It means to the contact force. It means to the B option is wrong. B option is a false. Okay. C. Force extended by magnet. Magnet. There is a right answer because magnet is a non-contact force here. Magnet is a non-contact force. There is a magnetic force applied here. It means to the C option is correct. C option is correct. Force extended by magnet. C option is correct. Next question on your screen. Question here. 1 kilogram weight is equal to 1 kilogram weight is equal to option A 98 neutron, B 9.8 neutron, C 0.98 neutron, and D 0.098 neutron. You know that is our question is very clear. 1 kilogram weight is equal to. But first of all, you give the answer for this question and write the correct answer from your notebook firstly. You know that you will note the question, right answer, your notebook. Let's see what is the answer for this question here. Question understand? Question is clear. 1 kilogram weight is equal to 1 kilogram weight is equal to, there is a B option is right, 9.8 neutron to the fix. There is a 9.8 neutron to the fix. 1 kilogram weight is equal to B 9.8 neutron. There is a 9.8 is the correct answer for this question. Let's see other question. Next question on your screen. Question here. A spring balance is used for a measuring. A spring balance is used for a measuring. A. Mass. B. Weight. C. Pressure. D. Speed. That's important option bhaiya. But first of all, you give the answer and write the correct answer for your notebook. I give you few seconds for you. Okay? You write the answer for the notebook. Let's see. Check the what is the correct answer for this question here. You know that this question is clear. A spring balance is used for the measuring. A spring balance is used for a measuring. You know that the question is clear. Mass. Mass is a nothing is a spring balance used for the measuring here. Mass nothing is right. Mass is a correctly wrong answer. Is the false. Okay. Speed is nothing here. Pressure never. The option is B is correct here. Weight. Option B is correct. Weight. A spring balance is used for the measuring of weight. The B option is correct for this answer. Let's see next question here. Next question on your screen. Question is clear here. Question is here directly. What is the pressure? Pressure is equal to. It is
Ask the examiner only formula. Pressure is equal to A, area upon force of which it is an act, B, force upon area on which act, C, volume upon force on which it act, D, force volume on which it act. You know that first of all you give the answer for this question and write the correct answer for your notebook here. Okay, you must have a choose their answer for the four option and write your notebook. Okay, let's see. Check the correct answer for this question. Question is clear. Pressure is equal to area force which it act, area upon force on which it act. It's a false option here. Force upon area on which is act. Force upon area on which it act. That's the correct answer. It means to B option is correct here. Force upon area on which it acts. It means to the pressure is equal to force upon area on which it act. It means to B option is correct. B option is correct here. Let's see next question here. Next questions on your screen. Question is here directly here. Gravity is A, repulsive, B, attraction plus repulsive force, C, attractive force, D, not a force. Question is clear. Gravity is. But first of all, you give the answer for this question, okay? And write the correct answer for your notebook. You have a note the correct answer in your notebook? Let's see. Check the what is the answer for this question. You know that is a question is clear. Question is clear here. Gravity is repulsive, not a repulsive. Not a repulsive means false. It means to the option B also is a false because attraction plus repulsing force. It means to the option B is also is a false here. It means to A, B is a false. C, attractive force. That's the correct answer. Gravity is an attractive force. It means to the option B, C is correct here. Option C is correct. Gravity is attractive force. Option C is correct. Let's see next question here. You know that next question on your screen. Question here. A batsman hit the ball for a boundary. Path there is a bowler 4 runs. The batsman thus A changes the direction of speed of the ball. B does not be change the direction but speed only. C does not change the speed but directional only. D does not be changed either direction or speed. Question is clear. A batsman hit the ball for a boundary. First, there is a bowler for a run, 4 run. The batsman thus. You know that the question is clear. But first of all, write the correct answer for your notebook. Firstly, you have a note the correct answer for your notebook. Let's see what is the answer for this question. Question is clear. Question is clear now. A batsman hit the ball for the boundary. Fast bowler. 4 run. 4 run. There is example of 4 run. The batsman thus. You know that. Directly answer here. Changes the direction and speed for the ball. Does not be change the direction but is speed only. Does not change the speed but is the direction only. Does not change either to direction or speed. You know that does not be change either direction or speed is a false option. And does not be change the speed but a direction only. It means the C option is also is a false. And does not be change the direction but is speed only. It is also is a false statement. It means to the option A is correct here. Option A is correct. Change the direction and speed of the ball. Change the direction and speed of the ball. It means to the option A. The batsman use a option A. Change the direction and speed of the ball. There is a 4 run here. Okay. The option A is correct for this question. Let's see next question here.
You know that next question on your screen, question here, the pressure which is exerted by air around us is known as. Question is clear. The pressure which is exerted by air around us is known as A. Force, B. Atmospheric pressure, C. Muscular force, D. Friction. Question is clear. But first of all, you write the correct answer for your notebook. Okay? You must have a write the correct answer in your notebook. Let's see what is the answer for this question here. Question is clear. The pressure which is exerted by air around us is known as. That's important here. You know that force. The force is applied here. Force is applied is never. Force is nothing is applied for this here. Atmospheric pressure. Atmospheric pressure. That is the right answer. Atmospheric pressure is applied here. The pressure which is extremely of air around us is known as atmospheric pressure. It means to the option is B is correct here. Atmospheric pressure is correct answer for this question. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Force acting on per unit area is called. Force acting on per unit area is called A. Non-contact force, B. Contact force, C. Force, D. Pressure. You know that this question is very important for the exam view here, but easy also. But first of all, you choose the correct answer. Fill 4 options here and write the correct answer for your notebook. You must have write the correct answer in your notebook. Let's see what is the correct answer for this question here. The question here, force acting on the per unit area is called. Area is called non-contact force. Non-contact force is false. B. Contact force. Contact force also is a false here. C. Force. There is no force applying here. It means to the C option is wrong. D. Pressure. Pressure is the right answer. Pressure is the right answer for this question here. Force action on per unit area is called pressure. It means to the option is D is correct here. Option D is correct. Let's see next question here. You know that next question on your screen. Question here. A dash exerted by an object on another is a force. A dash exerted by an object on the another is a force. A push or pull, B contact or non-contact force, C pressure, D magnitude. That's the most important fill in the blanks here. But first of all, you choose the correct answer and write your notebook here. You know that you write the correct answer in your notebook. Let's see what is the answer for this question here. Question is clear. A dash extremely by an object, another is the force. There is a contact and non-contact force, there is a force. Pressure also is a force. And magnitude also force. But push or pull, there is important force. It means to the A option is correct. A push or pull extremely by an object, another is the force. The option A is correct here. Push or pull. Option A, push or pull. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. The force exerted by the earth to pull the object toward itself is called. The force exerted by the earth to pull the object toward itself is called A. Electrostatic force, B. Gravitational force, C. Muscular force, D. Contact force. You know that the question is clear, but you write the correct answer for your notebook. Okay, you have a
Write the correct answer in your notebook. Let's see what is the correct answer for this question here. Question understand? Question is clear. The force exerted by the earth to pull the object toward itself is called. It's called electrostatic force. That's not applied to here. Electrostatic force. There is a not a electrostatic force. A option is wrong here. B, gravitational force. Gravitational force. That's the right answer because the force exerted by the earth to pull the object toward itself. It means to the gravitational force. You are also there is exerted by the earth a gravitational force. The gravitational force is the most important. There is object toward itself. It means to the option B is correct here. Option B, gravitational force, is a B option is correct. B option is correct. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Muscular force is also called dash force. Muscular force is also called a dash force. A, non-contact force. B, contact force. C, gravitational force. D, magnetic force. You know that this question is very easy. But first of all, you give the correct answer for this question. And write your notebook is correct answer. You will write the correct answer of your notebook. Let's see what is the question for answer for this question here. Question is clear. Muscular force is also called dash force. There is a muscular force also called contact force. Muscular force is also called contact force. It means to the option B is correct. Option B is correct for this question. Contact force. Next question on your screen. Question here. The force acted by a charged body on another charged. The force exerted by a charged body on another charge. A, gravitational force. B, electrostatic force. C, non-contact force. D, contact force. Question is clear. But first of all, you give the correct answer for this question. You know that you have choose the correct answer and write there in notebook. Let's see what is the correct answer for this question. Question is clear here. The force exerted by a charge body on another charge. The gravitational force? Nothing is gravitational force. A's option is wrong. A is a false. B, electrostatic force. B, electrostatic force. B is correct answer. B is correct answer. Electrostatic force here important. The force exerted by the charged body on another charge. Electrostatic force. It means to the B option is correct. B option is correct. Electrostatic force. That's important. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Force changes the A, motion of body. B, speed of body. C, shape of body. Or D, all of these. Question is clear. Force changes the. You know that question important for the exam view. But first of all, you give the correct answer for this question. And write the correct answer in your notebook. You must have thought your correct answer. Let's see what is the correct answer for this question here. Question is clear. Force changes the. Force changes the motion of body. That's correct here. Force changes the motion of the body. B, speed of the body. That is also is important here. It means to the B option is correct here. And C, shape the body. Shape the body. It is also is correct answer. It means option D is correct. Option D is correct.
All of this is correct answer. It means to D option is correct. All of this here force changes their motion of the body, speed of the body, and shape of the body. It means the option D is correct. Option D, all of these is correct. Let's see next question here. Next question on your screen. The question here: the force exerted by our muscle is called. The force exerted by our muscle is called A. Electrostatic force, B. Muscular force, C. Gravitational force, D. Non-contact force. Question is clear and very easy. But first of all, you give the correct answer for this question and write the correct answer for your notebook. You know that you thought the correct answer and write your notebook. Let's see what is the correct answer for this question here. Question is clear. The force exerted by our muscle is called. Our muscle is a force is called. You know that, friend? There's a clear answer. B. Muscular force. B is correct answer because muscle force is called muscular force. It means the B option is correct. B option, muscular force, is correct. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here: during dry weather, will the combining hair sometime express hair flying apart? The force responsible for this. Question understand? During the dry weather, will the combining hair sometime be expressed here flying apart? The force responsible for this: A. Force of gravity, B. Force of friction, C. Electrostatic force, D. Magnetic force. You know that is question is clear. Question is clear. And most important for the exam view here. First of all, you give the correct answer for this question and write your notebook. Okay? You must have write the notebook with correct answer. Let's see what is the answer for this question. Question is clear. During dry weather, it means to dry weather, will the combining here sometime we experience here flying. Here is flying apart. The force responsible for this. Force of gravity? No. Force of gravity, nothing is apply here. Force of friction? Force of friction is nothing is apply here. C. Electrostatic force? C. Electrostatic force. That's the correct answer here. The hair flying apart, it means to the hair force or responsible electrostatic force. It means to option C is correct here. Option C is correct. Electrostatic force. C. Electrostatic force is correct answer. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here: which one of the following force is contact force? Which one of following force is contact force? Force of gravity, magnetic force, force of frictions, D. Electrostatic force. That's the correct option here. But first of all, you choose the correct answer for this option. Okay? You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question here. Question is clear here. Which one of the following forces is a contact force? Is a contact force. The force of gravity, B. Magnetic force, B. Magnetic force. Nothing here B. Magnetic force. Not a force of gravity. And C. Force of friction. The force of friction. That's correct here. Flowing force, a contact force is a force of friction. Force of friction is correct answer here for this question. It means to the option C is correct. Option C, force of friction. That's the correct answer. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here: which of the following is a proper example to explain the force on object may be changed its shape? Question is clear. Which of the following is a proper example to explain that a force on object may be changed its shape?
A. A ball of duff rolling into the chapati. A ball of dug rolling in the chapati. B. Pressing a rubber ball kept on table. C. Making a model use a clay. C. All of the above. The question is clear. Which of the following a proper example to be explained the force on object may be changed shape? Question is clear. You know that first of all you choose the correct answer for this option. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. Question understand? Which of the following is a proper example to be explained that a force on object may be changed its shape? A ball of duff rolling in a chapati. Chapati? That's the correct answer. A rolling of dog in the rolling chapati. That's mean to the change the shape. It means to A option is correct. B. Pressing a rubber ball keep on the table. Rubber ball, there is a circle shape, but you press, there is the change the shape. It means to the B option is also correct here. And C. Making a model of clay. Clay is a simply, there is not a shape, and you give the shape. It means to the change the shape. It means to the C option is also correct here. It means to the option D is correct. Option D is correct. All of this here. Okay, all of these here example of change of shape. It means the D option is correct. D option is correct. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. A ball rolling on the ground slowly down and finally stop. A ball rolling off ground slowly down and finally stop. This is because of why the ball is stopped. A. Force. B. Less force applied. C. Friction. D. None of the above. Question is clear here. Question is direct. But first of all, you choose the correct answer for this option. You know that you have a thought of your answer and write also for your notebook. Let's see. Check the correct answer for this question. Question is clear. A ball rolling on the ground, slow down, and finally stop. Why the stop is ball here? There is a force. Nothing is a force applied. Force applied, the ball is moving. It means A option is totally wrong. B. Less force applied. Nothing is the right answer here. This is the wrong answer. Less force is nothing is the B option is wrong. C. Friction. Friction, that's the right answer. Friction is the ball rolling on the ground slowly down. Then find stop because is applied to the friction here force. Friction C option is correct. Option C is correct. C is a friction is correct. This answer. That's important here. Let's see next question. Next question on your screen. Question here. Force of friction. Force of friction obey act on moving objects and its a direction shall be. Direction shall be A. One any direction. B. Along the direction of motion. C. Perpendicular to the direction of the motion. D. Opposite to the direction of the motion. Question is clear. Force of friction obeys act on moving object and its direction shall be. You must have a thought of your answer. Correct answer, write your notebook. Okay? You have write the correct answer of your notebook. Let's see what is the answer for this question. Question is clear. Force of friction obey act on a moving object and its direction shall be one A1 any direction. A1 any direction is nothing is correct answer. B along the direction of the motion. No, it is not a correct answer. B perpendicular to the direction of the motion. Yes, it is a correct answer. Perpendicular to the direction of the motion.
That's the correct answer. The force friction obey act on moving object and its direction shall be a perpendicular to the direction of the motion. It means the option C is correct. Option C is correct for this question. Let's see next question here. Next question on your screen. Question is here. If in a tug of war, when two teams are pulling a rope and the rope does not be moved toward any team, it impels that there is a tug or war. There is a game. Okay, this is a game. Two teams is here participation in this game. They're pulling the rope. But here question, the rope does not be moved or to avoid any team. It means to the imply that equal forces begin applied to the same direction. Equal forces begin applied to the opposite direction. See, no force applied in the direction. D cannot be explained. That's the correct answer. But first of all, you choose the correct answer and write your notebook firstly. Okay? You must have write the correct answer with your notebook. Let's see what is the correct answer for this question. Question understand. Okay? If the tug of a bar, when the two team is pulling a rope and the rope does not be moved toward any team, it impels that equal force began to apply in the same direction. No, same direction is wrong, but equal force began to apply, that's right. But in the same direction, no, same direction is nothing here. Same direction it mean to the a move to avoid the team, but he has a not move to avoid in the any team. Equal force begin applied. Equal force begin applied in opposite direction. Opposite direction matlab means A and B. It means to the both team is the opposite direction is applied to force. It means to option B is correct. Option B is correct. Equal force is began applied in the opposite direction. The B option is correct for this question. Let's see last question here. You know that the last question arrive on your screen. Question here. Muscular force is also called. The muscular force is also called dash force. Dash for the muscular force is a non-contact force, B contact force, C gravitational force, D magnetic force. First of all, you choose the correct answer for this question. You must have a correct answer. Choose of and write your notebook. Let's see what is the question answer for this question. Question is clear. Muscular force is also called for. Non-contact force, that's nothing. Is the B option is correct. Muscular force is also called contact force. Option is B is correct. Contact force. That's important is the contact force here. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 8वीं CBSE NCERT के अंतर्गत साइंस, और हमारे समक्ष जो यहाँ पर चैप्टर आया है बल और दबाव। देखा जाए बल और दबाव काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर है। इसी के अंतर्गत आप लोगों के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर ने जो है MCQ लाया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ये MCQ काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और देखा जाए तो पहला यहाँ क्वेश्चन जो आया है, जो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, दो वस्तु एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करती हैं, इस प्रत्याकर्षण के कारण क्या हो सकता है। प्रत्याकर्षण का मतलब आप समझते होंगे कि प्रत्याकर्षण का मतलब होता है, आप चुंबक लीजिए और चुंबक के जब नॉर्थ साउथ पोल जो होंगे आपस में चिपक जाते हैं, लेकिन जब नॉर्थ साउथ को आपस में चिपकाने की कोशिश करोगे तो ये रिपल करेंगे, यानी ये प्रत्याकर्षित करेंगे। तो इसी यहाँ पर क्वेश्चन इसी के अंतर्गत पूछा गया है कि दो वस्तु एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करते हैं और इस प्रत्याकर्षण के कारण क्या हो सकता है। क्या एक केवल घर्षण बल हो सकता है, दूसरा केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल हो सकती है, या सी केवल चुंबकीय बल हो सकता है, या चुंबकीय या इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है और ऑप्शन भी आपके समक्ष 4 है। आप किसी एक ऑप्शन को जो है यहाँ पर चुन सकते हो और चुन के जो है अपने
जो है कॉपी पे नोट कर सकते हो, बाद में एनालाइज कर सकते हो कि आपने कितना आंसर सही दिया है। तो पहले आप अपना जो है सही आंसर यहाँ पर चुनिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने बात किया आपके समक्ष कि दो वस्तु एक दूसरे को प्रति आकर्षित करता है, और इस प्रति आकर्षण के कारण क्या हो सकता है। देखिए, केवल घर्षण बल यहाँ पर कोई कार्य नहीं करेगा, तो घर्षण बल की तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं उठता है, यानी एक ऑप्शन जो है गलत है। केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कार्यरत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो सिर्फ यही इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कार्य नहीं करेगा, इसके साथ कुछ और भी होना जरूरी है। कहते हैं सी केवल चुंबकीय बल, देखिए चुंबकीय बल तो होगी, लेकिन केवल चुंबकीय बल से यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ए बी सी इनमें से हम किसी को भी सही नहीं मान सकते। अगर बी को सही मान लेते हैं, सी को मान लेते हैं, तो दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जो हम ऑप्शन के साथ जा सकते हैं वो ऑप्शन डी है, क्योंकि डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें चुंबकीय और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, यानी देखा जाए जब दो वस्तु एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करती है तो इस प्रत्याकर्षण के कारण क्या होता है, चुंबकीय और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल दोनों ही कार्य करते हैं। यानी चुंबकीय बल भी होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल दोनों ही कार्य करते हैं। इसलिए आपके लिए जो है ऑप्शन डी सही है, आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव कहलाता है, यानी पुश और पुल को हम क्या कहते हैं। किसी वस्तु पर अगर आप धक्का लगाते हो या खिंचाव होता है तो उसको हम क्या कहते हैं। ए दबाव कहते हैं, बी धक्का और खींच कहते हैं, सी बल कहते हैं, या उपयोग सभी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत से बच्चे जो सोच रहे होंगे कि जैसे धक्का यानी पुश पुल जो दिखी हुई खिंचाव, और बी ऑप्शन में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बोला है किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव को हम क्या कहते हैं। खिंचाव और धक्का तो कह नहीं सकते, तो इसलिए जो है आपको सोच समझ के यहाँ आंसर देना है। सबसे पहले इसका आंसर जो है आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए, जो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। आप बच्चे नोट कर चुके होंगे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव को हम क्या कहते हैं। धक्का यानी पुश और पुल को दूसरा क्या कहते हैं हम। देखिए, दबाव तो कहेंगे, दबाव का मतलब होता है प्रेशर, ठीक है। धक्का खिंचाव यानी एक दूसरे को पुश और पुल करना। बल, हाँ बल हो सकता है, क्योंकि बल जो एक ऐसा चीज़ है जिसको हम धक्का खिंचाव तभी होती है जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं। तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो सकता है। तो आप सही ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव को हम क्या कह सकते हैं, बल कह सकते हैं। यानी सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए, क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर दो बल्ब जो है विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल होता है, क्या हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ये वर्क करते हैं, तो उस पर लगने वाले कुल बल होता है, क्या हो सकता है। दो बलों का योग होगा, या दोनों बलों के बीच अंतर होगा, या दो बलों का युग्म गुणन होगा, या दो सेनाओं का विभाजन होगा। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑप्शन भी है। आप किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, लेकिन जो सही होगा वही काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप अपना आंसर जो है नोट कर सकते हो कॉपी पे। आप अपना आंसर जो है नोट कर चुके होंगे। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही यहाँ क्लियर है कि यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, यानी दो फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में कार्य करते हैं, तो उस पर लगने वाले कुल बल क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है दो बलों का योग। देखिए, दो बलों का योग नहीं हो सकता। बेशक यहाँ दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, लेकिन दो बलों का योग यहाँ नहीं होगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर गलत है। देखा जाए दोनों बलों के बीच अंतर, हाँ ये बात सही हो सकती है कि दो बलों के बीच अंतर क्या था, क्योंकि दो विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो बलों के बीच अंतर क्या होगा। तो इसका मतलब हमारा यहाँ बी ऑप्शन सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, दोनों बलों के बीच अंतर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन है पत्ती किसके कारण ज़मीन पर गिर जाता है। आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ से पत्तियाँ गिरती है अक्सर। तो पेड़ से जो पत्ती गिरती है किसके कारण गिरती है। आप सोचिएगा कि पत्तियां हैं, सूख जाती है तो गिर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर भी कोई ना कोई बल कार्य कर रहा होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम के लिए कि पत्ती किसके कारण ज़मीन पर गिर जाता है। कोई भी बच्चा, साधारण जो होगा बच्चा, वो इसका आंसर देना संभव नहीं होगा, लेकिन जिसने पढ़ा होगा उसके लिए ये आसान रहेगा क्वेश्चन। तो आप भी अपना आंसर देखिए, कोशिश कीजिए कि पत्तियां किसके कारण ज़मीन पर जो है गिर जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या मांसपेशीय बल के कारण। किस बल के कारण जो है पत्तियां ज़मीन पर गिरती है। तो आप अपना आंसर जो है नोटबुक पर नोट कर सकते हो, क्योंकि आप पहले आंसर दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और इससे आपका जो है नॉलेज का भी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप अपना आंसर जो है नोटबुक पर लिख चुके होंगे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ क्लियर है कि पत्तियां किसके कारण ज़मीन पर गिर जाती है। देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल तो यहाँ कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक बल की यहाँ पर कोई कार्य नहीं है, यानी ए ऑप्शन गलत है। बी देखिए चुंबकीय बल, चुंबकीय बल तो यहाँ पर कार्य नहीं करेगा। चुंबकीय बल से जो है कोई चीज़ चिपका रहेगा, अपने यहाँ जगह पर स्थिर रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो गिर रहा है। देखिए सी गुरुत्वाकर्षण बल, आपने न्यूटन के स्टोरी तो सुना ही होगा कि वो पेड़ के नीचे सोया हुआ था, उसके फल गिरा तो उसने गुरुत्वाकर्षण की जो है खोज कर ली। हाँ, ये बात सही हो सकती है, क्योंकि इसी के अंतर्गत ये भी क्वेश्चन है कि पत्तियां किसके कारण ज़मीन पर गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यानी आपके समक्ष जो है सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। पत्तियां जो है ज़मीन पर इसलिए गिर जाती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वहाँ पर कार्य कर रहा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो पत्तियां जो है ज़मीन पर नहीं गिरती। तो ये ऑप्शन सी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है पत्तियां ज़मीन पर गिर जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है गति की अवस्था का वर्णन किसके द्वारा किया जा सकता है। गति की अवस्था का वर्णन किसके द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है, ऑप्शन भी यहाँ पर क्लियर दिया गया है। आराम की स्थिति में, गति की स्थिति में, सी आराम या गति दोनों की स्थिति में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि गति की अवस्था का वर्णन किसके द्वारा किया जाता है। आप अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे लिख सकते हो और इसका जवाब जो है आप पहले मुझसे तैयार कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपका नॉलेज का पता लग जाएगा कि आप कितना जो है अपने एग्ज़ाम के लिए जो है जागरूक हो, समझदार हो। ठीक है, आप अपना आंसर लिख चुके होंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है, गति की अवस्था का वर्णन किसके द्वारा किया जाता है। आराम की स्थिति के कारण या गति की स्थिति के कारण। देखा जाए तो ए ऑप्शन भी यहाँ पर सही है, क्योंकि आराम की स्थिति के कारण भी ऐसा हो सकता है और बी गति की स्थिति के कारण भी। तो बी भी बात सही कह रहा है, तो इसका मतलब है कि ए बी दोनों सही है। तो हम दोनों पर तो टिक लगा नहीं सकते हैं, लेकिन आप सी ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। सी ऑप्शन जो है दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी बता रहा है कि आराम या गति दोनों की स्थिति से, यानी देखा जाए तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। जब आपके दो आंसर सही होते हैं तो वहाँ पर एग्जामिनर तीसरा ऑप्शन में दोनों को ही दे देता है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और आप 8th क्लास के बच्चे हो तो आपको इतना समझ होना चाहिए कि आराम या गति दोनों की स्थिति से जो है ऐसा होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है जब हथौड़ा बिजली घंटी से टकराता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बल हथौड़े की गति के लिए जिम्मेदार होता है। आप यहाँ पर क्वेश्चन से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आप कभी भी जो है इलेक्ट्रिकल बेल बजाते हो, किसी घर जाते हो और वहाँ पर घंटी बजाते हो। घंटी जब बजाते हो तो घंटी में जो होता है एक हैमर लगा हुआ होता है, जो हैमर बार बार लोहे पर पीटता है और आपको आवाज़ ट्रिन ट्रिन की सुनाई देता है। तो ये हथौड़ा जो होता है उस पर बजता है। आखिर किस गति के कारण जो है हथौड़ा जो है कार्यरत होता है, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे कि जब आप घंटी बजाते हो तो घंटी में जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है
वो किसके कारण होती है, क्यों होती है। घंटी में जो हथौड़ा अपने आप जो है घंटी के ऊपर मारने लगता है, किसके कारण मारता है। तो यहाँ पर कौन सा बल जो है कार्यरत होता है। क्वेश्चन बहुत साधारण है। आए दिन आप लोग कहीं ना कहीं जाके या अपने घर की घंटी जरूर बजाते होगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा होगा कि इस पे कौन सा बल कार्य कर रहा होगा। तभी कहता है ना कि यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर आपको समझदार के साथ आपको इंटेलिजेंट भी बनाएगा। आप भी किसी से अगर पूछिएगा घर में कि जब हम घंटी बजाते हैं तो यहाँ पर कौन सा बल कार्य करता है। आजकल चलिए, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में गाना बजने लग जाता है, लेकिन पुराने समय में हथौड़ा जैसा जो है घंटी होती है, जैसे साइकिल में घंटी होती है वैसा होता था, जो बार बार उस पर पिटता था और उससे जो है आवाज़ प्रोड्यूस होती थी। तो ऐसा बात पूछा गया है कि जब हथौड़ा बिजली की घंटी से टकराता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है हथौड़े गति के लिए जिम्मेदार होता है। ए अकेले गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बी अकेले चुंबकीय बल होता है, या सी अकेले इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होता है, या अकेले घर्षण बल होता है। ऑप्शन भी काफ़ी दिलचस्प है। आप कोई भी ऑप्शन जो है जो आपको समझ है उसको चुन सकते हो और अपने नोटबुक पे इसको नोट कर सकते हो। आप अपना आंसर नोट कर चुके होंगे, मुझे विश्वास है। देखिए, अगर जब हम कोई घंटी को बजाते हैं तो उस पर जो घंटी पर बार बार ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ आती है, वो हथौड़े को पीटने के कारण आती है। और उसमें कौन सी जो है बल कार्य करता है। देखिए, अकेला गुरुत्वाकर्षण बल तो कार्य करेगा नहीं, यानी यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का कोई संबंध नहीं है। चुंबकीय बल तो थोड़ा बनाएगा, लेकिन चुंबकीय हम डायरेक्ट कह दें तो ये ऑप्शन गलत हो, क्योंकि अकेला चुंबकीय बल वहाँ कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है। सी देखिए, सी कहता है अकेले इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, यानी जब आप घंटी बजाते हो और वो जो आवाज़ प्रोड्यूस करता है तो उसका कारण क्या होता है, अकेले इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कार्य करता है। तो आप अपने किसी भी घर में किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा कि जब हम घंटी बजाते हैं, जब घंटी बार बार जो है हैमर जो है मारता है घंटी के ऊपर, तो किस बल के कारण जो है मारता है, तो आपको शायद बहुत ही रेयर व्यक्ति जो होंगे कोई बता पाएंगे कि इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कार्य करता होगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो, इवन कि जो बड़े बड़े पढ़े लिखे उनसे भी पूछ सकते हो, वो आपको सही आंसर कभी नहीं बता सकते, ये मेरा विश्वास है। अगर कोई बता दे तो मुझे कमेंट जरूर करना कि ये व्यक्ति ने मुझे जो है सही आंसर बता दिया था कि जो हथौड़ा मारता है बिजली, जो घंटी बजती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के कारण मारती है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। कहते हैं दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन ही बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर इसीलिए कहते हैं ना कि आपको यहाँ समझदार ही बनना है। तो आगे चलिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसका ऑप्शन तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कार्य करता है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, दो लड़के ए और बी एक जो है ब्लॉक पर बल लगा रहे हैं, यानी ए और बी लड़के हैं, बीच में एक जो है बॉक्स मान लीजिए, कुछ भी ब्लॉक है मान लीजिए, दोनों बच्चे एक दूसरे पर जो है बल लगा रहे हैं। ए एक साइड से बल लगा रहा है, दूसरा दूसरे साइड से बल लगा रहा है। यदि गुटका लड़के की ए की ओर बढ़ जाता है, यानी गुटका जो है ए लड़के की तरफ बढ़ता है, यानी बी इतना तेज से धक्का देता है कि बी जो है बी की तरफ जो है गति बढ़ जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। ए द्वारा लगाया गया बल का परिणाम बी की तुलना में अधिक था। क्या ए ने अधिक बल लगा दिया, बी के तुलना में ए ने अधिक बल लगा दिया, या ए द्वारा लगाया गया बल परिणाम बी की तुलना में छोटा था, या सी ब्लॉक पर नेट बल बी की ओर है, या ए द्वारा लगाया गया बल का परिणाम बी के बराबर है। तो आप यहाँ पर जो है ऑप्शन का सही चयन कर सकते हो, अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हो। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आपने नोट कर लिया होगा। देखा जाए, देखिए क्वेश्चन समझ में आपको आया कि दो लड़के हैं, दोनों के बीच में एक बॉक्स है और दोनों उस बॉक्स को जो है धक्का मार रहे हैं। ए इधर से धक्का मार रहा है, बी इधर से मार रहा है, लेकिन हुआ क्या, ए जो बॉक्स था वो ए की तरफ बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि बी ने अधिक फोर्स लगा दिया। अब बी ने फोर्स अधिक लगा दिया तो आखिर कैसे हुआ। ए द्वारा लगाया गया बल बी का परिणाम बी की तुलना में अधिक था। क्या ए ने अधिक बल लगा दिया? अरे भाई, ए ने कहाँ बल लगाया? अगर ए ने बल लगाया होता तो बी खसकता, लेकिन यहाँ तो ए खसका है। इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन के साथ आप नहीं जा सकते। देखिए बी, ए द्वारा लगाया गया बल का परिणाम बी की तुलना में छोटा था। छोटा का मतलब था कम है। तो ये बात तो सही है कि ए द्वारा लगाया गया बल बी की तुलना में बहुत छोटा था,
यानी ए ने बहुत ही कम बल लगाया और बी ने अधिक बल लगाया। बी ने अधिक बल लगाया इसलिए जो था बॉक्स खसक गया। तो इसका मतलब जो है बी ऑप्शन सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि ए द्वारा लगाया गया बल का परिणाम बी की तुलना में बहुत ही कम था, बहुत ही छोटा था, इसलिए जो है ब्लॉक सही जो है खसक गया। तो इसका मतलब जो है ये कथन सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकती हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। देखिए क्वेश्चन है कि जब दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो कार्य करने वाला कुल बल होता है। यानी जब दो बल है, जब दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो कार्य करने वाला कुल बल होता है। क्या होता है? ए, दो बलों का जोड़ होता है, बी, दो बलों के बीच अंतर होता है, या सी, ये दोनों ही होता है, या इसमें से कोई नहीं होता। क्वेश्चन तो आप समझ गए हो। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है कि जब दो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो कार्य करने वाला कुल बल क्या होगा। आप अपना आंसर यहाँ पर सोच सकते हो, अपना आंसर रख सकते हो, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन सोच लिए होंगे और ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लिए होंगे। चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो सकता है इसका। जब दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो कार्य करने वाला कुल बल होगा, दो बल का योग तो होगा नहीं, यानी दो बल का योग यहाँ पर संभव नहीं है। बी, दो बलों के बीच अंतर, हाँ ये हो सकता है कि दो बलों के बीच यहाँ पर अंतर जरूर होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, यानी बी करेक्ट है, दो बलों के बीच अंतर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उसके पश्चात हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्वेश्चन है, बल की शक्ति को इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो बल की शक्ति होती है हम किसके द्वारा जो है व्यक्त कर सकते हैं? क्या ये वजन के द्वारा, बी द्रव्यमान के द्वारा, सी परिणाम के द्वारा, या डी जो है अनुदैर्ध्य बल के द्वारा। तो क्वेश्चन यह क्लियर है कि बल की शक्ति को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखता है एग्जाम व्यू से, तो आप इसका आंसर जो है सोच सकते हो। क्या हो सकता है इसका आंसर, आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए आपने नोट तो कर लिया होगा, अब मैं बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि बल की शक्ति को इसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाता है? देखिए बल की शक्ति को हम वजन के द्वारा तो नहीं करते हैं, हम मास यानी द्रव्यमान के द्वारा भी नहीं करते हैं, हम परिणाम के द्वारा कर सकते हैं। यानी इसका ऑप्शन जो है सी सही है, हम परिणाम के द्वारा जो है हम इसका जो है व्यक्त कर सकते हैं। यानी बल की शक्ति को हम परिणाम के द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, असंपर्क बल का एक उदाहरण। देखिए असंपर्क बल, ऐसा बल जो बिना संपर्क किए ही कार्य करते हो। तो देखिए हम किसी चीज़ को अगर छुएंगे नहीं तब तक तो बल कार्य करेगा नहीं, लेकिन एक ऐसा बल है जिसको बिना छुए ही आप जो है गति करवा सकती हो। तो वो है ऑप्शन, देखिए क्या क्या है। एक बाल्टी उठाने के लिए हमारे द्वारा लगाया गया बल, ठीक है। एक स्थिर कार को धक्का दें, या सी चुंबक द्वारा लगाया गया बल, डी क्रिकेट गेंद को 6 रन के लिए मारना। आखिर इसमें से कौन जो है असंपर्क बल का उदाहरण है? तो आप सबसे पहले इसका आंसर जो है चयन कीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि आप सबसे महत्वपूर्ण हो तो आप चयन कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आप दे सकती हो। आपने अपना आंसर जो है नोटबुक पे नोट कर लिया होगा, चलिए अच्छा है। अब देखिए इसका आंसर जान सकते हैं क्या हो सकता है। असंपर्क बल, असंपर्क तो मैंने आपको बता ही दिया ना कि बिना छुए हम किसी चीज़ को गति कर दें। तो आप सोचिएगा कि तो मैजिकल मैन ही करता है कि मैजिक से हम कोई चीज़ को ले और अपने तरफ आकर्षित कर ले, लेकिन दोस्तों ये बल आपके पास हो सकता है, लेकिन कहते हैं आधुनिक युग है तो ऐसा बल हमारे पास होता है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या हो सकता है सही। एक बाल्टी उठाने के लिए हमारे द्वारा लगाया गया बल। देखिए बाल्टी उठाने के लिए हम कॉन्टैक्ट करते हैं, यानी संपर्क बल का उपयोग करते हैं, तो असंपर्क तो ये होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत गया। बी देखिए, एक स्थिर कार को धक्का दी, एक स्थिर कार है उसको धक्का दी, अरे भाई उसमें तो हम बल लगा रहे हैं, तो ये भी तो आंसर होगा नहीं। क्रिकेट गेंद को 6 रन के लिए मारना, आप क्रिकेट गेंद को 6 मारिए तो इसमें बल्ला और बॉल का संपर्क तो हुआ ना, इसमें क्या लगा, संपर्क बल लगा, असंपर्क बल तो नहीं लगा ना। अब देखिए चुंबक द्वारा लगाया गया बल, चुंबक ही ऐसा चीज है जिसको हम असंपर्क बल कह सकते हैं। चुंबक आप कहीं रखिए
और उसके सामने कोई भी लोहा का पदार्थ रख दीजिए, वो बिना आपको कहे अपने आप खींच लेगा। यानी आप सोचिएगा जादू है, लेकिन ये जादू नहीं होता, ये चुंबक का अपना गुण होता है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन जो है चुंबक द्वारा लगाया गया बल ही असंपर्क बल का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो असंपर्क बल का उदाहरण क्या है? चुंबक द्वारा लगाया गया बल, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है कि 1 किलोग्राम वजन बराबर होता है। 1 किलोग्राम वजन जो होता है किसके बराबर होता है? आप किसके बराबर जो है यहाँ पर सोच सकती हो। ए 98N, बी 99 पॉइंट यानी 9.8 N, सी 0.98 टन N और डी 0.098 N न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। सबसे बड़ी बात है कि सारे ऑप्शन में 98 के उपयोग किया गया है कोई ना कोई रूप में। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन 98 के आसपास ही इसका आंसर है। लेकिन आपको सोचना है कि क्या है, पॉजिटिव है कि पॉइंटों में है, क्या हो सकता है। आप अपना आंसर सोचिए, ठीक है, और सोच के जो है अपने नोटबुक पे लिखिए। तो ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा आपके लिए भी और यहाँ पर मेरे लिए भी कि आपने भी आंसर को चूज़ किया है। अगर आपका जो आंसर सही जाएगा वो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि मुझे 11वां नंबर आंसर आपसे पहले ही मुझे पता लग गया था। तो इससे मुझे भी खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्लियर है कि 1 किलोग्राम वजन बराबर होता है। देखिए 1 किलोग्राम वजन जो होती है हमेशा याद रखना कि 9.8 न्यूट्रॉन होता है। ये एक वैल्यू भी है, ठीक है। एन का जो यहाँ वैल्यू होता है यानी जी का किलोग्राम का वो 9.8 N होता है या न्यूट्रॉन होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि 9.8 न्यूट्रॉन यानी N। तो बी ऑप्शन सही गया। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। किन किन बच्चों का सही गया है वो बच्चे मुझे कमेंट कर सकते हैं, तब मुझे भी खुशी होगी और आपको भी कि आपने भी सही आंसर दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए आपने देखा होगा कि कोई चीज़ नापने के लिए स्प्रिंग बल होता है। यानी कभी आपके घर में सिलेंडर आता है, सिलेंडर जब नापने वाला आता है सिलेंडर लेके, तो आप कहते हो ना कि भाई इसका वजन करके दो, तो उसके बाद तराजू तो होता नहीं है, तो उसको पास ना एक स्प्रिंग बैलेंस बल होता है। तो वो क्या करता है, कांटे को आपके सिलेंडर में फंसाता है और उसको उठाता है। तो इसे स्प्रिंग बल बैलेंस बल कहते हैं। तो आखिर मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस बल का उपयोग हम किस लिए करते हैं? द्रव्यमान के लिए, वजन के लिए, दबाव के लिए या गति के लिए? तो आप अपना आंसर का जो है चयन कर सकते हो। कौन सा आंसर सही है मुझे आप बता सकते हो, ठीक है। आपने अपना आंसर बता दिया होगा, लिख भी लिया होगा। चलिए मैं देखता हूँ कि इसका आंसर यहाँ क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्लियर है कि मापने के लिए यानी तौलने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है दोस्तों बताइए? देखिए द्रव्यमान के लिए तो किया नहीं जाता। जैसे मैंने बताया कि सिलेंडर को उठाने के लिए, तो उठाने वाले चीज़ों के क्या कहेंगे? वजन कहेंगे ना। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। मैं तो पहले ही आपको हिंट दे दिया था कि हम जब सिलेंडर को उठाते हैं तो उसमें स्प्रिंग बल ही कार्य करता है और बंदा जो है सिलेंडर को फंसाता है उसमें और उससे ऊपर उठाता है, तो अपने आप हमें दिख जाता है। तो क्या दिखता है? वजन दिखती है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। देखिए हमारे जीवन के दिनचर्या कार्य में भी ना ऐसे ही बल का उपयोग होता है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं होता कि कौन बल कहाँ पर कार्य कर रहा होता है। लेकिन ये तब सोच में आता है जब बच्चे पढ़ते हैं, समझते हैं, तब जाके पता लगता है कि कौन कहाँ पर क्या होता है। ऐसे तो हम कहते हैं कि ये चीज़ हो रहा है, वजन हो गया, लेकिन कौन सा बल है, कैसा बल है, जब पढ़िएगा तभी समझ में आएगा ना। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकोगे। दबाव किसके बराबर होता है? दबाव किसके बराबर होता है? ए क्षेत्र बटा बल जिस पर कार्य करता है, बी बल क्षेत्र जिस पर कार्य करता है, सी आयतन बटा बल जिस पर कार्य करता है, डी बल बटा आयतन जिस पर यह कार्य करता है। तो ये तो एक फार्मूला है। जिन बच्चों ने जो है बुक को फॉलो किया होगा, जो समझे होंगे, उनके लिए आसान होगा, उनको तो फार्मूला याद होगा, फटाक से आंसर लगा देंगे। तो आप भी अपना आंसर लगाइए और कितना सही है मुझे भी बताइए और अपने कॉपी पे भी नोट कीजिए। आपने अपना आंसर जो है नोट कर लिए होंगे, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं, ठीक है, कितना बच्चों को कितना अच्छा आंसर गया है। देखिए यहाँ पर क्लियर है कि दाब किसके बराबर होता है?
दाब किसके बराबर होता है? ए क्षेत्र बटा बल जिस पर कार्य करता है। देखिए क्षेत्र तो नहीं होती है, क्षेत्र का यहाँ संबंध नहीं दिखने को मिल रहा है, क्षेत्र तो होगी नहीं। अब देखिए दूसरा ऑप्शन है बी, बल बटा क्षेत्र जिस पर कार्य करता है। बल, हाँ बल फोर्स, यानी बी ऑप्शन सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, बी ऑप्शन सही है, बल क्षेत्र जिस पर कार्य करता है। तो दबाव बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्र जिस पर कार्य करता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन को टिक कर सकते हो। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन सही किया है वो अब मुझे कमेंट जरूर करें। देखिए हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन भी आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? क्या एक प्रतिकारक है, या बी आकर्षण प्लस प्रतिकारक बल है, या सी आकर्षक बल है, या डी कोई बल नहीं है। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, अगर आपको समझ होगी तो आप फटाक से आंसर दे दोगे कि गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कह सकते हैं? प्रतिकारक या आकर्षक या प्रतिकारक बल या आकर्षण बल या कोई बल नहीं। आप अपना आंसर चूज कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर जो है बताने की कोशिश करूंगा। आपने आंसर अपना चुन लिए होंगे, कौन सा आंसर सही है, अच्छी बात है। अपने नोटबुक पे भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है? प्रतिकारक तो होता नहीं है, और बी आकर्षण प्लस प्रतिकारक बल। देखिए आकर्षण तो हो सकता है, ठीक है, आकर्षण तो होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आकर्षण आकर्षण उसमें भी है, आकर्षण इसमें भी है, तो प्रतिकारक तो होगा नहीं। तो बी ऑप्शन भी गलत है, ए ऑप्शन भी गलत है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी देखिए आकर्षक बल, हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि ये अकेला है और आकर्षक होता है कि गुरुत्वाकर्षण जो इसका संबंध कहीं ना कहीं आकर्षक बल से ही है। तो सी ऑप्शन आपका सही है कि गुरुत्वाकर्षण बल है आकर्षक बल के अंतर्गत, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन को जो है आप टिक लगा सकते हो, जिन बच्चों ने टी सी लगाया है वो सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है एक बल्लेबाज गेंद को गेंदबाज के पार चौका यानी 4 रन के लिए मारता है। इस प्रकार बल्लेबाज ने क्या किया है? बल्लेबाज ने गेंद की दिशा और गति बदल दी है, या बी दिशा नहीं बल्कि गति को बदली है, सी गति नहीं बल्कि केवल दिशा बदली है, डी न तो दिशा बदली है और न ही गति। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आया होगा कि मान लीजिए, देखिए सचिन तेंदुलकर आप तो जानते ही होंगे कि जिसे मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है, और क्रिकेट का बहुत ही महान प्लेयर है, एक काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। आपने देखा ही होगा कि सचिन तेंदुलकर ने काफ़ी समय तक जो है मैच खेले हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है थके नहीं। यदि जब वो खेलते हैं तो वहाँ पर वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, और वो हमेशा बॉल को काफ़ी कस के नहीं मारते हैं जैसे धोनी मारते हैं। आप देखोगे कि धोनी क्या होता है, बल आता है तो उसको कस के मारता है, जोर लगा के, वो अपना पूरा पावर लगाता है। लेकिन वही अगर सचिन तेंदुलकर की तुलना करोगे तो सचिन तेंदुलकर जो है वो कभी भी बॉल पे जो है कस के प्रहार नहीं करते। वो बल की जो है बॉलर जो गति से बॉल करवा रहा होता है, उसी गति को वो एक दिशा दिखा देते हैं, और जैसे दिशा दिखाते हैं बॉल छक्का चौका चला जाता है। तो ऐसे बल्लेबाज कम ही होते हैं जो वहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और आसानी से जो है बॉल को बाउंड्री पार करवा देते हैं। तो क्वेश्चन भी इसी के अंतर्गत है कि एक बल्लेबाज गेंदबाज को पार चौका यानी 4 रन के लिए मारता है, किस बल के कारण, कैसे मारता है। तो आप अपना आंसर जो है चुन सकते हो, कौन सा आंसर सही है मुझे बता सकते हो, क्योंकि आपका आंसर सही होगा, आप अपना आंसर देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन ये कहता है कि गेंद की दिशा और गति बदलता है। देखिए ये बात कहीं हद तक सही तो है, लेकिन हम ऑप्शन देख लेते हैं आगे क्या क्या है। दिशा नहीं बल्कि गति बदली जाती है। देखिए दिशा नहीं बल्कि गति बदली जाती है तो गलत है। दिशा तो बदली जाती है, ठीक है, तभी तो वो बॉल अपनी दूसरी दिशा में चली जाती है, क्योंकि जो बॉलर वहाँ से बॉल करा रहा होता है, अब थोड़ी ही हम उसी की दिशा में मारते हैं, ये तो नहीं हो सकता है। गति नहीं बल्कि दिशा बदलती है, गति भी बदलना जरूरी होता है। देखिए ये भी ऑप्शन गलत है, न तो दिशा बदलती है और न ही गति, ये भी गलत है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपका सही है कि गेंद की दिशा और गति बदलता है। तो ये ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है
हमारे चारों ओर हवा द्वारा लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है? हमारे चारों ओर जो हवा होती है, हवा के द्वारा लगाए जाने वाले बल को हम क्या कहते हैं? ए बल कहते हैं, बी वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, सी मांसपेशियां बल कहते हैं और डी घर्षण बल कहते हैं। क्वेश्चन अगर आप सोचिएगा तो बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर उसको सोचना ही काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आपने सोच लिया होगा, अपना आंसर लिख लिया होगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखिए, हमारे चारों ओर हवा द्वारा लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है? हम क्या उसको बल कहते हैं, या वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, या सी मांसपेशियां बल कहते हैं, या घर्षण? देखिए, घर्षण की बात तो नहीं हुआ कि घर्षण तो हम फिक्शन कहेंगे, तो फिक्शन तो यहाँ पर कार्य नहीं करेगा, यानी फिक्शन जो बात यहाँ पर दी गई है वो गलत है। मांसपेशियां बल भी यहाँ पर कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हवा की बात की गई है और बल की तो करेगा ही नहीं करेगा, यानी ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो हवा द्वारा लगाए जाने वाले बल को हम वायुमंडलीय दबाव कहेंगे, यानी ऑप्शन बी सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, बी ऑप्शन वायुमंडलीय दबाव सही है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले को हम क्या कहते हैं? उस बल को हम कहते क्या हैं? क्या उसे हम गैर संपर्क बल कहते हैं, या बी संपर्क बल कहते हैं, या सी बल कहते हैं, या डी दबाव कहते हैं? आप अपना आंसर जो है यहाँ पर चुन सकते हो। जो आंसर आपका सही होगा वो सही होगा। क्योंकि आप भी समझदार हो, आप लगा सकते हो अपना आंसर, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आप अपना आंसर जो है पहले चूज कर लिए होगे, समझ लिए होगे। चलिए, क्वेश्चन जो यहाँ पर क्लियर है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल क्या कहलाता है। देखिए, गैर संपर्क बल तो कहा नहीं जाएगा, या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो होगी नहीं, बी संपर्क बल तो होगा नहीं, सी बल भी नहीं होगा, यानी ए बी सी जो है गलत है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। डी ऑप्शन जो है दबाव सही है, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। देखिए, क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु पर लगाया गया डैश एक बल है। यानी क्वेश्चन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपके समक्ष पूछ लिया गया है। किसी वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु पर लगाया गया डैश एक बल है। ए धक्का देना या खींचना, बी संपर्क या गैर संपर्क बल, सी दबाव और डी परिणाम। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? आप अपना आंसर जो है चुनिए और अपने नोटबुक पे इसको जो है नोट कीजिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। क्या आंसर हो सकता है? देखिए, किसी वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु पर लगाया गया डैश एक बल है। धक्का देना या खींचना। देखिए, धक्का देना या खींचना भी एक बल है, ये तो बात सही है, लेकिन संपर्क या गैर संपर्क बल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जाना तो हमें यह एक ऑप्शन के साथ ही है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो सकता है धक्का देना या खींचना, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। ए ऑप्शन यहाँ सही है, धक्का देना या खींचना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचने के लिए लगाया गया बल कहलाता है। देखिए, पृथ्वी भी जो है अपना बल लगाता है। ठीक है, पृथ्वी द्वारा वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए कौन सा बल कार्य करता है? देखिए, पृथ्वी जितने भी वस्तु धरती पे है, पृथ्वी के ऊपर है, पृथ्वी ने अपने तरफ खींच रखा है। अगर ये नहीं खींचा होता तो आप लोग जो है हवा में उड़ रहे होते। जैसे आपको पता है कि अगर चांद पे कोई व्यक्ति चला जाता है या आप वायुमंडल से ऊपर चले जाओगे तो वहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण आप फ्लैट करने लग जाती हो। चांद पे भी जाओगे तो चांद का अपना कोई बल नहीं होता है, जिसके कारण जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वहाँ पर वो हवा में तैरते रहते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर अपनी ओर खींचने के लिए लगाया गया बल को हम क्या कहते हैं? ए इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कहते हैं, बी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, या सी मांसपेशियां बल कहते हैं, या डी संपर्क बल कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया है। आप अपना आंसर चुन सकते हो और सही आंसर जो है अपनी कॉपी पर लिख सकते हो या मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपने आंसर अपना चुन लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है।
जैसे कि आपको पता ही होगा कि पृथ्वी द्वारा वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम सब इंसान जो है, हम जितने भी पृथ्वी की वस्तु है सब के सब चिपके हुए हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होती तो हम हवा में उड़ रहे होते। न्यूटन भी यही बात बताया था कि कोई भी जो है फल धरती से गिरता है क्योंकि धरती अपनी तरफ उसको आकर्षित करती है। यानी बी ऑप्शन सही है, गुरुत्वाकर्षण बल, कि पृथ्वी जो है हर चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसलिए ऊपर जो भी चीज़ फेंकी जाती है या ऊपर होती है डायरेक्ट नीचे ही गिरेगी। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, बी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन है, पेशीय बल को डैश बल भी कहा जाता है। जो पेशीय बल होता है उसे हम कौन सा और बल कह सकते हैं? क्या उसे ए गैर संपर्क बल कह सकते हैं, या बी संपर्क बल कह सकते हैं, या सी गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं, या डी चुंबकीय बल कह सकते हैं? क्वेश्चन बहुत ही इजी है और काफ़ी मज़ेदार है कि पेशीय बल को यानी मस्कुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं, किस बल से रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप अपना आंसर जो है चुन सकते हो और लिख सकते हो और मुझे कमेंट में लिख बता भी सकते हो। तो आप अपना आंसर सोच लिए होगे, आपने सोच लिया, चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो पेशीय बल को हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, पेशीय बल को क्या कह सकते हैं? गैर संपर्क बल। देखिए गैर संपर्क तो मैंने आपको समझाया था कि गैर संपर्क बल होता है बिना संपर्क किए ही हम जिसको अपनी तरफ खींच लें। तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल यानी जो मैग्नेट बल था, चुंबकीय बल, तो वो बल यहाँ पर कार्य करेगा। चुंबकीय बल जो है गैर संपर्क बल के लिए सही था। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो ऊपर कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, ठीक है। और चुंबकीय बल तो वही गैर संपर्क बल की तरह ही चुंबकीय बल भी कार्य करेगा। तो इसका मतलब सारे ऑप्शन गलत है, सिर्फ बी ऑप्शन सही है, संपर्क बल। देखिए मांसपेशियां जो होती है, जब तक मांसपेशियां किसी चीज़ से संपर्क नहीं करेगी तब तक जो है वो कार्य नहीं करेगा। तो मांसपेशियां बल जो है एक तरह का संपर्क बल है। तो इसका मतलब ए सी डी गलत है, बी ऑप्शन सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, संपर्क बल यानी संपर्क करने वाला बल जो है पेशिया बल का सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि एक अवशोषित वस्तु द्वारा दूसरे आवेश पर लगाया गया बल। देखिए एक अवशोषित बल, एक अवशोषित वस्तु है जो बिल्कुल अवशोषित हो चुका है और दूसरा जो है अवशोषित पर लगाया गया बल, क्या वो बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा, या बी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कहलाएगा, या सी गैर संपर्क बल कहलाएगा, या डी संपर्क बल कहलाएगा? देखिए एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेश पर लगाया गया बल, ये बल का थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि जो बेल होती है, घंटी होती है, उसमें दो तरह के बल होती हैं। एक आवेशित बल होता है जो किसी वस्तु को आवेशित करता है, और वो आवेशित बल जो है दूसरे वस्तु पर कार्य करता है। यानी देखिए हम उसमें जो है करंट गुजारते हैं तो वहाँ पर कुछ चुंबकीय फील्ड उत्पन्न होती है, और वो चुंबक की वजह से क्या होता है, वो बार बार पिटने की कोशिश करता है हैमर की तरह। तो यहाँ पर एक को अगर हम आवेशित करते हैं तो दूसरे आवेश पर वो बल लगाता है, तो उस बल को हम क्या कहते हैं? आपको क्वेश्चन मैंने समझा दिया है तो आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना आंसर जो है नोट कीजिए या मुझे कमेंट जरूर कीजिए। जो बच्चे समझदार होंगे जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। आपने समझ लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन तो क्लियर है ना। एक आवेशित वस्तु, आवेशित का मतलब होता है जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन गुजार देते हैं, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद यानी बिजली जिसमें प्रभावित कर देते हैं वो आवेशित कण हो जाता है, ठीक है। और आवेश, दूसरे आवेश यानी जिसमें आवेश ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ गुरुत्वाकर्षण बल तो यहाँ पर कार्य करेगा नहीं। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल का कार्य करेगा। घंटी वाला कंडीशन में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कार्य कर रहा था और यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल ही कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, बी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है बल परिवर्तन करता है। बल किसको परिवर्तन करता है? जो बल होती है वो किसको चेंज करता है? शरीर की गति को, शरीर की गति के, या शरीर का आकार को, या ये सभी को? देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है, कि बल परिवर्तन किसको कर देता है? बल शरीर की गति को कर देता है, शरीर को आकार के कर देता है, या शरीर के जो है डिज़ाइन को? ऐसा है ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर एक जो है मिसप्रिंट हुई है, तो इसका कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए हो कि बल परिवर्तन किसको करता है।
देखा जाए अगर शरीर गति दो बार लिखी गई है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यही बात। और शरीर का आकार, ठीक है, तो क्या हो सकता है? आप अपना आंसर जो है चुनिए और मुझे बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर सही होगा। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, क्या आंसर हो सकता है इसका? तो आप देखिए यहाँ पर बल परिवर्तन करता है। बल जो होता है किसी चीज़ को भी परिवर्तन कर देता है, शरीर की गति को भी करेगा, शरीर के आकार को भी करेगा, शरीर में मोशन भी लाएगा। तो इसका मतलब सारे कार्य बल कर सकता है। तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही है। ये सभी जो है सही है, यानी डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो कि बल सभी चीज़ को परिवर्तन कर सकता है, यानी डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया होगा। क्वेश्चन है, हमारी मांसपेशियां द्वारा लगाया गया बल कहलाता है। हमारा मांसपेशियां जो बल लगाती है उस बल को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन डायरेक्ट है। क्या उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कहते हैं, या बी मांसपेशियां बल कहते हैं, या सी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, या उसे डी गैर संपर्क बल कहते हैं? क्वेश्चन डायरेक्ट है, आंसर भी इसका डायरेक्ट ही होगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, डायरेक्ट ही होगा। ठीक है, तो आप अपना आंसर चुन लिए होगे। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए देखिए, हमारा मांसपेशियां द्वारा कौन सी बल लगाई जाती है? जर्नल सी बात है दोस्तों, मांसपेशियां जो है मांसपेशियां बल ही लगाएगी, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। देखा, इसका आंसर कोई इतना मुश्किल भी नहीं था कि मांसपेशियां द्वारा लगाया गया बल को हम मांसपेशियां बल ही कहेंगे, यानी इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। देखिए क्वेश्चन है, शुष्क मौसम में बाल में कंघी करते समय कभी कभी हमें बाल उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए जिम्मेदार बल कौन सा है? आप कभी सोचे होंगे कि जब हम बाल में कंघी करते हैं और बाल जो है उड़ता रहता है जब शुष्क मौसम हो यानी गर्म का मौसम हो, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? किसी ने सोचा नहीं होगा। आप अपने मम्मी से भी पूछ के देखिएगा कि क्या ऐसा होता है, तो उसमें कौन सा बल कार्य करता है। वो भी भौचक्का रह जाएंगे कि भाई इस पर कौन सा बल कार्य करता है। हम तो सब दिन कंघी करते हैं और बाल जो है कंघी करने के बाद थोड़ा सा उड़ने लग जाता है, तो इसमें कौन सा बल होगा? समझेंगे ही नहीं। लेकिन आप तो समझदार बन चुके हो ना, आप तो क्वेश्चन कर सकती हो। क्वेश्चन करोगे तब ना माता पिता को पता लगेगा कि आप सच्ची में पढ़ती हो, और यहाँ तिरपान स्टडी सेंटर जो अच्छे से पढ़ाता है बच्चों को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आप पूछना घर में किसी भी अपने बहन से पूछ लेना, भाई से पूछना कि भाई कि जब आप बाल में कंघी करते हो तो कभी कभी जो है आपके बाल उड़ने लग जाते हैं, तो आखिर किस बल के कारण जो है आपके बल उड़ते हैं? चलिए यहाँ ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, बी घर्षण बल, सी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, या डी चुंबकीय बल। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ सोचने की बात है, समझने की बात है। तो आप अपना आंसर चूज कर लिए होंगे। अगर आपको आंसर पता है सच्ची में तो मुझे कमेंट जरूर करके बताना कि मेरा आंसर सही गया। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करते समय कभी कभी हमें बाल उड़ने का अनुभव होता है, और इसके लिए जिम्मेदार बल कौन सा है? जिम्मेदार बल जो है कौन सा है? क्या गुरुत्वाकर्षण बल है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल तो यहाँ कार्य करेगा नहीं, घर्षण बल तो करेगा नहीं, चुंबकीय बल भी नहीं करेगा। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होता है, क्योंकि एक बल, ये मैंने कहा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल में जो होती है एक को आवेशित करती है। जब हम कंघी करते हैं तो बाल जो होता है आवेशित हो जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि कंघी को जब अपने बालों के पास लाओगे तो ये उड़ने लग जाता है। कभी देखा है ये एक्सपेरिमेंट करके? ठीक है, या कुछ भी लेके जाओ तो उड़ने लग जाता है, तो ये आवेशित हो जाता है। जब बाल में हम कंघी करते हैं शुष्क मौसम में तो बाल जो है उड़ने लग जाता है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कार्य करता है। एक को आवेश करता है, दूसरे आवेशित हो जाता है। तो इसी कारण यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के कारण जो है ऐसा होता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो और अपना क्वेश्चन किसी से भी पूछ सकते हो। देखिए, हमारे समक्ष आ गया है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है? निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है एक संपर्क बल है? संपर्क, जिसपे हम संपर्क साधते हैं, संपर्क करते हैं, तो वो बल कौन है? ठीक है, संपर्क बल कौन सा है? क्या गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, या चुंबकीय बल है, या सी घर्षण बल है, या डी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है? कहते हैं ऐसा क्वेश्चन आप देख के समझ रहे होंगे कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है तो आप चकरा जाते हो कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तभी तो कहता हूँ कि एक बार जरूर देखिए, समझिए, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात को डिस्कशन किया जाता है। तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा, सोच लिया होगा।
चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है संपर्क बल है। देखिए संपर्क बल की बात किया गया है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो ये तो संपर्क बल होगा नहीं, यानी ए ऑप्शन गलत है। बी चुंबकीय बल, चुंबकीय बल भी यहाँ पर गलत है कि चुंबकीय बल तो गैर संपर्क बल होता है। और सी घर्षण बल, हाँ घर्षण बल होता है क्योंकि इसमें संपर्क होती है। देखिए घर्षण में क्या होगा, अगर आप किसी चीज़ पे अपना रगड़ लगाइएगा तो या तो दीवार पे अपना हाथ रगड़िएगा तो घर्षण तो हो रही है ना, या मान लीजिए चक्का जो है टायर का पहिया है वो रोड से घर्षण लेगा तो ये घर्षण बल है, संपर्क हो रहा है ना, एक दूसरे के साथ संपर्क हो रहा है, तो इसका मतलब संपर्क बल हुआ। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है सी सही है, यानी घर्षण बल। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यह समझाने के लिए उचित उदाहरण है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसका आकार बदल सकता है। देखिए किसी भी चीज़ पे अगर बल लगाते हो तो उसका आकार बदल जाता है, ऐसा कौन सा उदाहरण है? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा उदाहरण सही है? जब आटे की एक गोंद को रोटी में लपटा गया है, यानी मान लीजिए जैसे कि मम्मी आपके रोटी बनाती है तो वो गोला होता है, लेकिन जैसे हम बल लगाते हैं वो जो है सपाट बन जाता है, रोटी बन जाता है। तो इसमें कौन सा बल लगा? जैसे मेज पर रखी रबड़ की गेंद को आप दबाते हो तो कौन सा बल है? क्या आकार में बदलाव हुआ? कौन सा हो सकता है? मिट्टी का उपयोग करके आप एक मॉडल बना देती हो तो क्या है, या उपयोग सभी? क्वेश्चन समझे कि निम्नलिखित में से कौन सा यह समझाने के लिए उचित उदाहरण है किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसका आकार बदल देता है। ये तीनों चारों में से ऐसा क्या क्या सब में आकार बदला है? तो क्या हो सकता है इसका आंसर? आप चुनिए और चुन के जो अपने नोट कॉपी पे भी नोट कीजिए और मुझे कमेंट भी कीजिए। ठीक है, कमेंट पे कीजिएगा तो अच्छा रहेगा कि आपको पता लग गया आंसर। ठीक है, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, कमेंट भी कर दिया। चलिए देखते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अच्छा उदाहरण कौन सा है, उचित उदाहरण कौन सा है कि किसी वस्तु पर कोई अगर बल लगता है तो उसका आकार बदल जाता है। अब देखिए आटे की जो है लोई है, गोंद है, ठीक है गेंद है, अगर उस पर अगर आप बेलन चलाओगे, रोलिंग करोगे तो आकार तो बदल लेता है। तो ये उदाहरण सही है ना, क्योंकि आकार तो बदल गया, तो ये उदाहरण सही है। चलिए ये भी सही है। मेज पर रखी रबड़ की गेंद, अगर मेज पर रखी कोई गेंद है अगर आप उसको दबाते हो तो क्या उसका आकार में चेंजेस होता है कि नहीं? होगा, क्योंकि आप दबाओगे तो आकार में चेंज होगा, बाकी छोड़ दोगे तो फिर दोबारा अपने आकार में आ जाएगा। मिट्टी, देखिए मिट्टी के आप क्ले लेते हो, आप क्ले से आप कितना कुछ बना देती हो, मूर्ति, खिलौना, क्या क्या बना देती हो। तो क्या हम करते हैं, इसके आकार में बदलाव कर दिया। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन तो ये दोनों ही तीनों ही सही है। इसका मतलब हुआ कि इसका ऑप्शन डी सही है, सभी उपयोग सभी, यानी सारे जो है एक ऐसे बल का उदाहरण है जो आकार बदल सकता है। तो ये इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही है। अब डी ऑप्शन के साथ जा सकती हो, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद धीमी हो जाती है, अंत रुक जाती है, इसका कारण क्या है? देखिए आप बैट बॉल खेलते ही होगे, जब जमीन पर गेंद लुढ़कने लगता है तो धीमी हो जाता है और अंत में वो रुक जाती है। आखिर वो रुका है किसके कारण? वहाँ पर कौन सा बल जो है कार्य था? ठीक है, आपने गेंद खेलते ही होगा, आपने जनरली देखा भी होगा, नहीं होगा ना, तो हाथ में बॉल लीजिए, उसको फेंकिए थोड़ा सा और वो लुढ़कता लुढ़कता धीमा हो जाएगा और अंत में वो रुक जाएगा। क्यों रुका वो बॉल, किस कारण रुका? क्या उसमें एक बल लगा है, या बी कम बल लगाया गया है, या सी घर्षण बल लगा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं लगा है बल? बहुत अच्छा है ना क्वेश्चन। अब सोचिए कौन सा बल होगा वहाँ पर, आखिर कौन सा बल लगा है? आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा, सोच भी लिया होगा, और मुझे विश्वास है कि आपने कमेंट में भी लिख के भेज दिया होगा कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलिए देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, ये सबसे अच्छा उदाहरण जो है घर्षण बल का है, क्योंकि घर्षण बल जो है हमें जो है एक तरह का फ्रेंड भी है और एक तरह का दुश्मन भी है। फ्रेंड इसलिए होता है कि घर्षण के कारण ही हम जो है चल पाते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपके घर में फर्श लगा हुआ है, अच्छा है, चिकना फर्श है, और उसमें तेल गिर जाए ना तो आपका पैर नहीं टिकेगा, क्योंकि घर्षण बल खत्म हो जाएगा। जो आपके साइकिल होता है उसमें वायरिंग लगी होती है, उसमें घर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण वो बहुत तेज चलता है। ठीक है, और वही बल जो है अगर रोकने के लिए भी काम आता है। अगर मान लीजिए चक्के में अगर कट नहीं पड़ा हुआ होगा तो वो क्या करेगा, नहीं कट पड़ा रहा होगा तो आपकी गाड़ी फिसलेगा,
जो साइकिल है वो फिसल जाएगा ना, इसलिए वहाँ पर घर्षण बल कार्य करता है। जब कोई गेंद को हम लुढ़काते हैं तो ज़मीन के और जो बल में जो होता है घर्षण बल कार्य करता है और अंत में वो धीमा होगा और रुक जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बन सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है घर्षण बल हमेशा गतिशील वस्तु पर कार्य करता है। ये बात तो सही है और इसकी दिशा क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर है, समझ गए होंगे कि घर्षण बल हमेशा गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है और इसकी दिशा होगी ए किसी भी दिशा में हो सकती है, बी गति की दिशा के साथ होगी, सी गति की दिशा के लंबवत होगी या डी गति की दिशा के विपरीत होगा। आप अपना सही आंसर चुन सकते हो और मुझे कमेंट में बता भी सकते हो और अपनी नोटबुक पे लिख भी सकती हो। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो घर्षण बल हमेशा गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है, ये बात सही है, लेकिन कौन सी गति दिशा होगी, इसकी कैसी दिशा होगी, यही क्वेश्चन से पूछा गया है। किसी भी दिशा में होगी ये तो बात गलत है कि किसी दिशा में कैसे हो सकता है। गति की दिशा के साथ होगी, नहीं ये भी बात गलत है कि गति की दिशा के साथ गलत होगा, यानी ये भी तो गलत है। गति की दिशा के लंबवत होगा, हाँ ये बात सही होगी क्योंकि गति की दिशा के लंबवत ही कार्य करेगा, यानी सी ऑप्शन सही है। गति की दिशा के साथ जो है लंबवत रहेगी, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है। देखिए, यदि रस्साकसी में दो टीमों एक रस्सी खींच रहे हैं और रस्सी किसी भी टीम की ओर नहीं बढ़ती है तो इसका क्या तात्पर्य है। आपने रस्साकसी देखा ही होगा कि जहाँ पर जो है बीच में हम कोई धागा बांध देते हैं और दोनों तरफ से जो है टीम रस्सी को खींचती है, जो पावरफुल होती है वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है। ऐसा ही होता है ना, आपने देखा ही होगा गेम कि दोनों तरफ से रस्सी खींचते हैं, वो उधर खींचता है वो इधर खींचता है, दोनों तरफ बल लगती है। लेकिन यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि रस्साकसी में दो टीम एक दूसरे को खींच रही होती है तो रस्सी किसी भी टीम की ओर नहीं बढ़ती है, ना तो इधर झुकती है ना इधर झुकती है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, कोई कारण होगा ना इसका, साइंस में तो उसका कारण बताना पड़ेगा आपको। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ऑप्शन समझ सकते हो कि ऑप्शन ए है सामान्य दिशा में सामान्य बल लगाया जा रहा है, बी सामान्य बल विपरीत दिशाओं में लगाया जा रहा है, सी किसी भी दिशा में कोई बल नहीं लगाया जा रहा है या समझाया नहीं जा सकता। क्वेश्चन देखिए काफ़ी दिलचस्प है, आप अपना आंसर सोच सकते हो, लिख सकते हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, कमेंट में लिख भी दिया होगा, अच्छी बात है। देखिए, यदि रस्सी में दो टीमें एक दूसरे को खींच रहा है और रस्सी किसी भी टीम की ओर नहीं बढ़ रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है। क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, सामान्य दिशा में सामान्य बल लगाया तो नहीं जा सकता। देखिए, सामान्य बल विपरीत दिशाओं में लगाया जा सकता है, यानी बी ऑप्शन सही है कि सामान्य बल विपरीत दिशाओं में लगाया जा रहा है, जिसके कारण जो है रस्सी में कोई भी बढ़त हमें देखने को नहीं मिल रहा है, यानी बी ऑप्शन सही है कि सामान्य बल विपरीत दिशाओं में लगाया जा रहा है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। ये क्वेश्चन है पेशीय बल को डैश बल भी कहा जाता है। पेशीय बल को हम क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन तो इतना करने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पेशीय बल को क्या कहते हैं। क्या उसे गैर संपर्क बल कहते हैं या बी संपर्क बल कहते हैं या सी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं या डी चुंबकीय बल कहते हैं। आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हो, अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हो, बाद में इसको चेक करोगे कितने आंसर आपका सही गया। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, पेशीय बल को हम क्या कहते हैं। पेशीय बल जो एक तरह का संपर्क बल होता है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। मांसपेशियां जो होती है किसी संपर्क होता है तभी कार्य करता है, यानी इसका देखा जाए तो डायरेक्ट आंसर है बी संपर्क बल, यानी बी संपर्क बल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप बी संपर्क बल के साथ जा सकते हो, इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक था। हमने हर एक बात को जो है एनालाइज किया, समझा, जाना और विचार किया, समझाने की कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार मिलता रहे, चाहे वो साइंस में रहे, चाहे मैथ में रहे, चाहे इंग्लिश का एमसीक्यू हो, चाहे एसएसटी का एमसीक्यू हो, अगर आप सारे एमसीक्यू चाहते हो तो जर्नल सी बात है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना होता है। अगर आप बस व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइएगा
तो आपके दोस्त, आपके जो है जानने वाले, आपके क्लासमेट के बच्चे ज़रूर देखेंगे और ये उनको लिए भी फ़ायदा होगा। जब ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँचेगा तो आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर और भी अच्छा करेगा और आपके सारे जो है MCQ आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप शेयर कीजिएगा तो शेयर से जो है दूसरे बच्चों का केयर होता है और जो केयर करता है दूसरे बच्चों का वही बच्चा अच्छा होता है। तो आप अपना कार्य जरूर कीजिए। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो आपको तो पता ही होगा कि चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा आपको। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो क्या पता मैथ का जो MCQ डालूँ वो आप नहीं देख पाओगे, क्या पता SST के अगर डालूँ तो वो नहीं देख पाओगे। इसलिए सोचिए नहीं दोस्तों, विचार न कीजिए, अभी जो आपको रेड सब्सक्राइब दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।